کیا بات کرنی ہے تاکہ میں کروں، مجھے بتاؤ۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح پچھلی مرتبہ آپ نے آواز اٹھائی، آپ کی آواز اٹھانے سے ہمارے گھروں کی خوشیاں لوٹ آئیں، آپ کی آواز اٹھانے سے ہمارے گھروں میں چراغاں ہونے لگا، آپ کی آواز اٹھانے سے بلوچستان کے گھروں میں معجزات ہونے لگے، آپ کی آواز اٹھانے سے بلوچستان کے گھر آباد ہوئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پھر سے ہمارے لیے آواز اٹھائیں، آپ آواز اٹھائیں گی تو ہم آباد ہوں گے، یہ ان ماؤں کی خوشیاں لوٹ آئیں گی، ان کی آنکھوں کا نور لوٹ آئے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ آواز اٹھائیں، آپ وہی مریم صفدر ہیں جو پہلے ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں تسلیاں دی، اور آپ کے واقعی بولنے سے فرق پڑا، 300 سے زائد لوگ بازیاب ہوئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہی معجزہ دوبارہ ہو، اب ہمارے گھر لوٹنے سے پہلے ہمارا بچہ، ہمارا بھائی بازیاب ہو کے لوٹ آئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے آواز اٹھائیں، ہم آپ ہی کے سہارے یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جب بولیں گی تو یہ ریاست بولے گا، یہ ظلم ختم ہوگا، آپ ہمارے لیے بولیں۔ ہم آپ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ معجزہ اب ہمارے ساتھ ہو، اب ہمارے گھروں میں مریم کی وجہ سے چراغاں ہو، اب ہمارے گھر مریم کی وجہ سے آباد ہو، اب ہمارے گھروں میں روشنی مریم کی وجہ سے آئے، اب ہماری آنکھوں کا نور مریم کی وجہ سے آئے۔ ہم جب آباد ہو تو ہمیں مریم آباد کرے، بلوچستان میں مریم کا نعرہ گونجے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پیاروں کو بازیاب کریں۔ آپ بتاؤ۔ سب سے پہلے ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے اس وقت ہمارے اس تکلیف میں شامل ہوئے ہیں۔ ہم ایک ہفتے سے یہاں پر لاوارثوں کی طرح بیٹھے ہیں، بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کوئی حکومتی نمائندہ کرم سے ملو، یہاں پر ان ماؤں سے پوچھو جو اپنے بیٹوں کا نام لینے سے پہلے ان کی آنسویں نکلتی ہیں، جو کھڑے ہو کر بے ہوش ہوتی ہیں، جو پوری رات سو نہیں سکتی ہیں۔ ان ماؤں سے آئیں، ملیں، ان کے درد اور تکلیف کو دیکھیں، یہ کس اذیت سے گزر رہی ہیں۔ جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 2 فروری کو ایک بیان دیا تھا کہ گورنمنٹ ڈونٹ وانٹ اینی مسنگ پرسن ان دا کنٹری، تو ہم ان سے یہ سوال کرنے آئے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم آج کہاں پر کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر دین محمد 12 سالوں سے لاپتہ ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے فادر ہیں۔ میرے فادر ایک سرکاری ملازم ہیں جن کو سرکاری ہاسپٹل کے اندر سے رات کے 1 بجے اٹھا کر لے کر گئے۔ میرے ابو ایک سرکاری ملازم ہیں جو کہ سرکار کی اس حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جو ہے ملازم کو تلاش کرے، لیکن اس کے باوجود ان کی 2 بیٹیاں 12 سالوں سے مسلسل جدوجہد کرتی ہوئی آ رہی ہیں۔ یہاں کے عدالتیں، یہاں کے کمیشن، یہاں کی حکومتیں سب ہمیں کہتے ہیں کہ یا ہم کوشش کر رہے ہیں یا ہم بے بس ہیں، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ تو ابھی ہم یہاں پر دوبارہ آئے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں کہ ایک دفعہ ہم آپ سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کی حکومت میں بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہمارے پیارے ہمیں لوٹ سکتے ہیں یا نہیں۔ ہم 1 ہفتے سے پریس کلب کے سامنے بھوک ہڑتالی کیمپ ہم نے لگایا ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہم اپیل کر رہے ہیں۔ آرمی چیف، صدر پاکستان، وزیر اعظم عمران خان صاحب، یہ مائیں آئی ہیں، ایک دفعہ ان سے ان کی تکلیف کے بارے میں پوچھیں، ایک دفعہ تو پوچھیں کہ آپ بلوچستان کو چھوڑ کر یہاں کیوں آئے ہیں، ایک دفعہ پوچھیں کہ جو مائیں اپنی جو ہے کمزور ہڈیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ یہاں تک کیوں آئے ہیں۔ کیا وہ پاگل مائیں ہیں؟ کیا یہ پاگل بچیاں ہیں جو روڈوں پر بیٹھی ہیں؟ نہیں، ان کو صرف اپنے پیاروں کا گھر، ان کی تکلیف گھر میں بیٹھنے نہیں دیتی ہے۔ یہ مائیں بلوچستان کی ترقی کے لیے نہیں نکلی ہیں، یہ بلوچستان میں روزگار کے لیے نہیں نکلی ہیں، یہ مائیں نوکریوں کے لیے نہیں نکلی ہیں، یہ بیٹیاں جو ہے بلوچستان میں اچھی سڑکوں کے لیے، مکان اور بجلی کے لیے نہیں نکلی ہیں، یہ صرف اپنے لخت جگر، اپنے بابا، اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کی تلاش میں نکلی ہے۔ جو ان کا بنیادی حق ہے، جو حق ان کو اس ملک کے آئین اور قانون نے دیا ہے،
जो हक इनको इस मुल्क के आईन और कानून ने दिया है कि जो शहरी इस मुल्क के खिलाफ जाता है उसको अदालत के कटहरे में लेके आते हैं, लेकिन हमारे साथ ये नहीं किया जा रहा है। हम सालों से यही कह रहे हैं, हमारा सीधा साधा मुतालबा है, अगर हमारे प्यारे मुजरिम हैं, इस मुल्क के मुताबिक, इस मुल्क के कानून के मुताबिक मुजरिम हैं, तो उनको आप अदालत के कटहरे में ले आएं। आप भले ही इनको जो है फांसी दे दें, हमें एतराज नहीं है, लेकिन हमें हमारी जिंदगी दे दें। हमारी घर की खुशियां जो है 12-12 सालों से लापता हैं। सिर्फ मेरे बाबा लापता नहीं है, मेरे वालिदा की जवानी लापता हो गई है, हमारी बचपन लापता हो गई है, हमारी खुशियां, हमारे घरों की चैन, हमारा सुकून सब लापता हो गया है। हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक तलाश बन के रह गई है, एक तलाश जो कि 12 सालों से जारी है, एक तलाश एक बेटी की जो ये तक नहीं जानती है कि वो अपने बाबा को जिंदों में शुमार करे या मर्दों में शुमार करे, एक तलाश जो कि एक बेटी अभी तक नहीं जानती है कि वो खुद को जो है यतीम समझे या कि अभी तक उस बाप का इंतजार करे उसके लौटने का, एक तलाश एक बेटी का जो कि ये नहीं जानती है कि उसकी वालिदा जो है अभी तक हाफ विडो है या कंप्लीट विडो है। ये रवा रखा जा रहा है हमारे साथ, फिर भी कहते हैं बलूचिस्तान में लोग नाराज बलोच हैं, फिर भी कहते हैं बलूचिस्तान पसमानदा सूबा है। आप बलूचिस्तान के डॉक्टर्स को लापता करते हो, आप बलूचिस्तान के वकला को लापता करते हो, आप बलूचिस्तान के तालिब इल्म और उस्तादों को लापता करते हो, फिर आप कैसे कह सकते हो कि बलूचिस्तान एक पसमानदा सूबा है। हमारी एक आसान सी गुजारिश है, एक सिंपल मुतालबा कि अगर हमारे प्यारों ने कुछ किया है तो उनको अदालत के मुताबिक सजा दें। हमें नहीं पता इन 12 सालों में हमारे प्यारों का क्या हाल है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में जिस अजियत, जिस ज़हनी अजियत, जिस कर्म में हम मुब्तला है उसका जो है बयान में अल्फाजों में नहीं कर सकती, वो अल्फाजों में मुमकिन ही नहीं है। इन 12 सालों में हमारा खुशियों से कभी वास्ता ही नहीं हुआ है, हम दर दर भटक रहे हैं, कभी इस जज के सामने झोली फैला रहे हैं, कभी उस हुकूमती नुमाइंदे के सामने भीख मांग रहे हैं अपने प्यारों की, कभी उनके सामने जो है उनके सामने हाथ फैला रहे हैं। ये हमारी जिंदगी है क्या? इसलिए हमें पैदा किया गया है। अब मेरे साथ मेरे बाबा का होना मेरा बुनियादी हक है, क्यों इस हक को मुझसे छीना गया है? मुझे किस नाकर्दा जुर्म की सजा दिया जा रहा है? इस माँ को किस नाकर्दा जुर्म की सजा दी जा रही है? हम सबको हमारे गुनाह क्या है? अगर हमारे लोग लापता हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में हम सब अजियतें सह रहे हैं। हमारा एक आखिरी मुतालबा है कि यहाँ की जो अपोजिशन पार्टीज हैं या फिर जो जितने हुकूमती नुमाइंदे हैं, साथ साथ वजीर आजम इमरान खान साहब, आर्मी चीफ, आप आए, हमसे मिले, हमसे हमारे प्यारों की बाजियाबी का वादा करें। आप जब तक हमसे हमारे प्यारों की बाजियाबी का वादा नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं लौटेंगे, क्योंकि हमारे लिए अब जिंदगी का और कुछ नहीं रह गया है। हमारी जिंदगी का आखिरी मकसद हमारे प्यारों का लौटना है, और ये हम उम्मीद करते हैं कि इस दफा इस्लामाबाद से हम अपने प्यारों को उठाकर ही साथ लेकर जाएंगे। हम यही उम्मीद करके यहाँ तक आए हैं। मेरी दरख्वास्त है कि हमें नाउम्मीद करके यहाँ से ना भेजा जाए। बहुत शुक्रिया। ये आपने जो तस्वीर पकड़ी हुई है, इसमें कोई पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ, ये कौन है? ये इनका बेटा है, सईद अहमद, सिक्योरिटी लेवीज एहलकार है, जो है 8 सालों से लापता है। इनकी जो है मंगेतर 8 सालों से इनके लिए इंतजार कर रही है। अभी इनकी मंगेतर को फैमिली वाले फोर्स कर रहे हैं कि हमारी बेटी को तलाक दें, हम अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और कराएंगे। एक लड़की 8 सालों से अपने मंगेतर के लिए इंतजार कर रही है। कहाँ से उठाया था इनको? मस्तूम से। कहाँ? मस्तूम। मस्तूम। अच्छा, मस्तूम।
آپ میں سے اور کچھ کوئی کہنا چاہتا ہے؟ جی بیٹا بتاؤ، بولو، دے دیں ان کو۔ سب سے پہلے میں مریم نواز کا بہت بہت شکر گزار ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. ہر روڈوں پہ میں گھوم چکی ہوں. بیٹا آپ کا کون مسنگ ہے؟ میرا بھائی راشد حسین. کیا عمر ہے ان کی؟ 23. کہاں سے اٹھایا انہیں؟ دبئی متحدہ عرب امارات سے. یہ پکچر میں 2020 کو کوئٹہ کے جلسے میں آپ سے ملنے آئی تھی. یہ پکچر لے کر آئی تھی. تو اب 2021 یہ پکچر میں واپس آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں. کیا میرا بھی زندگی میں لب و سمی کی طرح گزرے گا؟ کیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزار نہیں سکتی؟ کیا میں اپنے چاچا کے لیے ہر ہمیشہ مظاہرے کرتی رہوں گی؟ کیا میں اپنی ماں کی گودی میں نہیں سو سکتی؟ کیا میں ایک رات اپنی ماں کے ساتھ نہیں سو سکتی؟ کیا میں اپنی ماں کے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھا سکتی؟ کیا یہ میری زندگی میں نہیں لکھی؟ میں عمران خان سے کہتی ہوں کہ آپ نے جو یہ وعدہ کیا تھا یہ وعدہ پورا کریں. ہم سے ملنے آئے، ہمارے لوگوں کو بازیاب کریں. اگر نہیں لے کر آئیں گے تو ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں. کیونکہ 6 دن سے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ہمارا بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا ہے، لیکن افسوس وہ وہاں تک نہیں آ سکا. کل ہم اسلام آباد پریس کلب سے ڈی چوک تک پیدل مارچ کرتے ہیں اور ہمیں مارا گیا. میرے بھائی پہ اگر کوئی جرم ہے تو انہیں عدالت میں لے کر آئے. آپ اپنے ٹارچر سالانہ کیوں رکھا انہیں؟ ان کا قصور کیا ہے؟ ہماری خوشیاں یہی ہے، ہماری چین یہی ہے، ہماری سکون یہی ہے. ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے. یہ مائیں جو رات کو سردیوں میں کانپ رہے تھے لیکن پھر بھی اپنا احتجاج جاری رکھا، آج پھر سے یہ مائیں یہاں بیٹھنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ان کے دل میں وہ درد ہے وہ ہم نہیں سہ سکتے. بس میں اب لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ ہمارے لوگوں کو منظر عام پر لے کر آئے، اور عمران خان سے یہی کہتی ہوں کہ وہ آئے اپنا وعدہ پورا کرے. شکریہ. میڈم ذاکر مجید کی والدہ ذاکر مجید نلومو ذاکر مجید اسٹوڈنٹ سکو یہ سونا بابو چیئرمین سکو پانی روٹی سکو اور مستنگان 8 جون 2009 اودے مستنگ پرنگ آباد آتی اونا او تو ایرا ساتھی ہے تو رکھو ساتھی تبصر بارک کے ذاکر او لاپتہ کرے ذاکر 12 سال کنا ہماری مریم نواز نے شکریہ ادا کی وہ کنا ہماری کنی سر کے یا منظر عامات دیتا عمران خان یہ اندر مریم نواز یونیورسٹی شکریہ ادا کی ورننا کلنا دا افس کیاری لمت یوسر کل دکھٹین دردٹین اکتا ماں کفس کنا ہمارا ولی کو مسنگی وہ دے 12 سال ماری کوداس کا نفر کنا باز مہربانی کنا مدد دے کے کنا ماری کنی کشفی تے سر کی کنی شکریہ. میڈم ماں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ ہم یہاں پہ آپ لوگوں کے آسرے پہ آئی ہوئی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری آواز بنو گے اور ہمارے پیاروں کی بازیابی میں اپنا کردار ادا کرو گے اور ہمیں ذہنی زندگی بھر کی اذیت سے نجات دلاؤ گے. بی ایس او آزاد کا انفارمیشن سیکرٹری شبیر بلوچ کی بہن بھی کچھ کہنے سے. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے دکھ درد میں یہاں پر ہم سے اظہار یکجہتی کے لیے آئے. آپ کا بہت بہت شکریہ.
मैं एक लाचार बहन जिसके भाई को 5 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है, वो किस हाल में है। हमें पता नहीं कि वो जिंदा है भी या नहीं। मैं जब भी घर में पहुंचती हूँ तो मेरी अम्मी पूछती है कि शबीर का कुछ पता चला है या नहीं। मैं हुकूमत से यही सवाल करती हूँ कि मेरी अम्मी का हक नहीं बनता कि वो अपने बेटे को देखे। जब मेरी अम्मी मेरे भाई के कमरे में दाखिल होती है तो उनके कपड़ों को देखती है, उनकी किताबों को देखती है, रोती है, कहती है कि मैंने अपने बेटे को ना पढ़ाया होता तो अच्छा होता, क्यों मेरे साथ होता, कोई शराबा होता लेकिन मेरे सामने होता, वो किसी बाग में फंसकर होता तो वो मेरे सामने होता, लेकिन मैंने अपने बेटे को पढ़ाकर बहुत बड़ी गलती की। मैं हुकूमत से यही पूछती हूँ, क्या हमारे भाइयों को पढ़ने का हक नहीं है? मेरे भाई का जुर्म इतना था कि वो एक स्टूडेंट था। मैं इमरान खान साहब से यही पूछती हूँ, क्या मेरी जिंदगी में इसी प्रेस तलबों के सामने एहतजाज दिखाएं, मेरे छोटे मीराज की जिंदगी में इसी कैंपों में एहतजाज दिखाएं। जब मैं घर से निकलती हूँ तो मीराज मुझे कहती है, अम्मा आज हम कैंप नहीं जाएंगे, मुझे घर में अपने भाई बहनों के साथ रहना है। तो मैं उसे देखकर वहीं पर टूट जाती हूँ। मैं बिल्कुल बिखर चुकी हूँ, मैं अंदर से टूट चुकी हूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों को देखकर खुद को संभालती हूँ। बड़ी मुश्किल से उनसे ये कहती हूँ कि हम अपने घर में खुशी से रहेंगे, एक दिन मेरा भाई जरूर आएगा, मैं अपने भाई को लेकर आऊंगी। अब जब मैं यहाँ पर आई हूँ, हमें 1 हफ्ता हुआ है, लेकिन आज तक हमें किसी ने नहीं पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए, आप किस लिए आए हैं। हमने पहले तो ना कभी कोयटा देखी, ना कभी इस्लामाबाद, ना कभी कराची। मेरे भाई के लापता होने के बाद मैं दर बदर भटक रही हूँ। लोग मेरे पीछे हजारों बातें करते हैं, कहते हैं कि एक अकेली औरत यहाँ वहाँ भटक रही है। मैं उनसे यही कहती हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है इस तरह सड़कों पे भटकने का। मैं उनसे यही कहती हूँ कि खुदा मेरे भाई को बाजियाब करे, मैं अपने घर से नहीं निकलूंगी, मैं अपने घर में ही रहूंगी। 2016 से पहले किसी ने मुझे इन सड़कों पे देखा था? नहीं। 2016 में जब मेरे भाई लापता हुआ तो ये एक ऐसा दर्द है कि घर में बैठने भी नहीं देता। मैंने ये नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे बाप मेरे भाइयों को कितने ताने मारेंगे। मैंने ये सोचा कि मुझे निकलना है, मुझे इन सब से लड़ना है, मुझे शबीर को वापस लाना है। मैं हुकूमत से यही दरख्वास्त करती हूँ, एक बार आप लोग खुद आर्मी चीफ, वजीर आजम वहाँ अपने टार्चर सेल में जाकर शबीर की मासूम आंखों को देखें। क्या वो गुनहगार हो सकता है? अगर हो सकता है तो आप यहाँ पर आकर हमारे सामने उन्हें सजा दें, हमें मंजूर है। लेकिन इस तरह सालों से उन्हें अजियत में रखना हमें बर्दाश्त नहीं होता। हम और इंतजार नहीं कर सकते, हम और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब कोई खुशी का मौका आता है तो लोग अपने घरों में खुशियाँ मना रहे होते हैं, लेकिन हम अपने घरों में मातम मना रहे होते हैं। हमें आए हुए यहाँ 1 हफ्ता पूरा हुआ है, लेकिन हमें पूछने वाला कोई नहीं। मैं इमरान खान साहब से यही सवाल करती हूँ, क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम आपको नजर नहीं आते? ये अम्मी मेरे आपको नजर नहीं आते, ये बूढ़ी माए आपको नजर नहीं आते, ये छोटा मीराज आपको नजर नहीं आता। खुदारा हमें इस अजियत से निकाल दे। आपसे दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा आप भी हमारी फरियाद सुने, आप हमारी आवाज दुनिया तक पहुंचाएं, आप हमारे प्यारों को लाएं। हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं। मैं मेरगुल मरी की बेटी हूँ। मेरे वालिद मेरगुल मरी को 14 सितंबर 2015 को हमारे घर सरियाब रोड से रात को 40 बंदे 10 गाड़ियों से हमारा गेट तोड़ के मेरे वालिद सो रहे थे, उठा के ले गए हैं। मेरे वालिद 18 ग्रेड के ऑफिसर हैं और 60 साल के हैं। वो कोई जवान नहीं है जो बर्दाश्त कर सके। हमने FIR भी काटा है और कमीशन ने MI को जिम्मेदार ठहराया है और कमीशन ने प्रोडक्शन ऑर्डर भी रिलीज किए हैं। 4 महीने हो गए हैं, हम इसी इंतजार में हैं। अगर कमीशन के हाथ में कुछ है नहीं तो कमीशन बनाया क्यों है? मेरे दादी अपने बेटे के इंतजार में अपने बेटे को देखे बगैर चली गई।
मैं 15 दिन पहले मेरे बच्चे की डेथ हुई है। मैं अपना गम भूल के यहाँ आई हूँ। मैं क्वेटा भी गई हूँ, कराची भी गई हूँ और 40 घंटे सफर करके यहाँ इस्लामाबाद आई हूँ। यहाँ कैपिटल सिटी है, हमें इंसाफ चाहिए। वो हमारे घर के बड़े हैं, हम बहुत तकलीफ में हैं, हमारे तालीम पर असर पड़ रहा है, हमारे बच्चे रोडों पर बड़े हो रहे हैं, लोग खुशियाँ मनाते हैं, हमारे बच्चे प्रेस क्लब में बैठे होते हैं। हम भी सम्मी की तरह यही पूछते हैं कि क्या हम यतीम हैं या अपने अब्बू का इंतजार करें। मैं आखिर में तमाम हायर अथॉरिटी से यही अपील करूंगी कि मेरे वालिद मेहरगुल मरी को जल्द अज जल्द बाजियाब करें। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए और हमसे मिलने आए। मेरा नाम हानी गोल बलोच है। जैसे कि कहते हैं कि बलूचिस्तान जो साइल और वसाइल से माला माल है, मैं उसी खत्ते की बदनसीब बेटी हूँ, जैसे कि इन माओ बेटियों की तरह। कहते हैं कि हमारे लोग, मैं मुख्तसर करके बोलूँगी क्योंकि टाइम शायद आपके पास ज़्यादा ना हो, हमारे लोग उठाए जा चुके हैं। मैं किसी की मंगेतर हूँ। जिस तरह कहते हैं कि बलोच की बेटियाँ घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन मैं वो वाहिद मंगेतर हूँ जो अपने मंगेतर के लिए कराची प्रेस क्लब के सामने, क्वेटा प्रेस क्लब के सामने, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रही हूँ। जो टॉर्चर सेल मेरे मंगेतर को उठा के लेके गए थे, मैंने भी देखी है वो टॉर्चर सेल, मुझे भी उठा के लेके गए थे 3 मत, मैं भी उस टॉर्चर सेल में रह के आई हूँ। आपको क्यों ले गए थे उठा के? बलोच होने का सजा तो मिलेगा, क्योंकि मैं बलोच, कोई जुर्म हमने नहीं किया था, हम कोई मुजरिम नहीं थे, हम बिला वजह ही हमें उठा के लेके गए थे, कोई जुर्म भी साबित नहीं हुआ। क्योंकि नसीम को वहाँ पे मारते रहे तो नसीम का यही बात था कि मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मुझे जब छोड़ा गया, मैंने जाके सिंध हाई कोर्ट में पटिशन भी जमा की, मैंने कमीशन में भी केस किया, मैंने एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी केस भेजा और एहतजाजें धरने कर करके मैं थक गई। आज मैं आई हूँ यहाँ पे, जैसे कि 7 दिन हमें पूरे हो गए हैं, हम यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और हम इस्लामाबाद में इसलिए आए हैं और इस तवक्को और इस उम्मीद से आए हैं कि हमें यहाँ पे सुना जाएगा, हमारे लोगों को बाजियाब किया जाएगा। क्योंकि मेरे जो मंगेतर है यहाँ पे, हर लोग जो बैठा हुआ है, उनकी आंखें अश्कबार है अपने प्यारों के लिए, और आप सबसे उम्मीद लगा के यहाँ पे आई है कि आप लोग उनकी सुनेंगे, उन लोगों को बाजियाब करेंगे और बाजियाब करने में आप हमारी मदद करेंगे। और हमारी इमरान खान से और हमारी कमर जावेद बाजवा से यही अपील है, हमारे लोगों को जो आप लोगों ने उठाए हैं उन्हें बाजियाब करें। अगर उनके ऊपर कोई जुर्म है तो कोर्ट कचहरियां आपके अपने हैं, लाए उन्हें पेश करें, हमारे वकील है। सजा अगर जुर्म उनके ऊपर आयद हो गई, साबित हो गई, तो आप भी चौराहे में लाके उन्हें फांसी दे, हमें मंजूर है। लेकिन इस तरह पाबंद सरासर रखना हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि बलोचिस्तान में हर घर जल रहा है, बलोचिस्तान में हर माँ जल रहा है, हर बेटी जल रहा है, हर भाई जल रहा है। हमें इंसाफ चाहिए और हम इंसाफ के मुंतजर हैं और हम इंसाफ के लिए आए। शुक्रिया। मैडम, मैं मुख्तसर करना चाहता हूँ। सारे फैमिलीज़ ने बात की, अम्मा बैठी हुई है, उसने बात नहीं की, वो उर्दू में बात नहीं कर सकती है, रो रही है। और कल भी अपने बेटे का जिक्र यहाँ किया था और यहाँ गिर के बेहोश हो गई थी। जान ज़ैद मोहम्मद हसनी उसका नाम है, 5 साल हो रहा है उसको क्वेटा से उठाया गया है, लेकिन अब तक बाज़ियाब नहीं हुआ। तो हम तंजीमी सतह पर मैडम आपके मशकूर है कि आपने हमारे दर्द को महसूस की, हमारे यहाँ पर आया और फर्दन एक लवाकिन की आपने दर्द सुनी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपकी तंजीम मिसिंग पर्सन के बाजियाबी के हवाले से अपनी किरदार अदा करेगा। हम जिस तरह सब लोगों ने जिक्र किया कि 7 दिनों से आए हुए, हम ये उम्मीद लेके यहाँ पे आए हुए हैं कि हमें सुना जाएगा, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि 7 दिन हमें हो रहा है और यहाँ पर हम लोग रात में, सर्दी में भी हम लोगों ने धरना दिया था, लेकिन हमें नहीं सुना जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस मसले को इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर देखा जाए, क्योंकि अगर एक बंदा मिसिंग होता है, उसका पूरा फैमिली होता है, जिसकी वजह से वो ज़हनी करब, अजियत
اور بہت سے مشکلات کا شکار ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے یہاں آپ کے سامنے کچھ واقعات بھی آئے. کچھ ایسے یہاں پہ شادی شدہ خواتین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم بیوہ ہو چکے ہیں کہ ہمارا شوہر زندہ ہے. اور اس کے علاوہ میڈم ایک اور چیز بھی ہے کہ کچھ ایسے کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں کہ ایک فیملی کا 8 سال سے وہ مسنگ ہے. 5 سال کے بعد اس کی بیوی نے دوسری شادی کی تھی. 8 سال کے بعد وہ جب بازیاب ہوا تھا تو اس کے مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کرب اور اذیت ہے لوگوں کے لیے. تو ہم آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں اگر ہمیں گورنمنٹ سن نہیں رہا ہے تو ہم آپ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان غم زدہ گھرانوں کی آپ لوگ آواز بنو گے اور اس آواز کو آپ لوگ ایوانوں میں اور مختلف فورمز پہ آپ لوگ اٹھاؤ گے تاکہ جو جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے وہ حل ہو. ہمارا مطالبہ بھی آئینی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جن پہ الزام ہے آپ ان کو عدالت میں پیش کر دو. جو بے قصور ہے ان کو فوری طور پر رہا کر دو. اور جو اس دنیا میں نہیں ہے وہ ریاست کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ان کے خاندان کو بتائے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ملکی قوانین کے مطابق حل کیا جائے. ہم آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے. ہم آپ کے مشکور ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری آواز بنو گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.